Good evening and welcome to Blueprint Explosive Exclusive. I'm Madhudas Gopalakrishnan. We bring you this particular show from Connaught Place in the heart of the national capital. The national capital, which along with several cities in northern India, has been seeing acutely high levels of AQI, and also along with that fog, which is of course having a huge amount of impact not just on the movement of flights or in fact public events being cancelled such as cricket matches, but also directly impacting on the health of citizens of the national capital and all of these areas in the country. The Parliament of India was all set to debate the issue of air pollution today, but that did not happen on ground. Instead, all we saw was ruckus and blame game take place. Why could Parliament, the one institution which could have debated this actually and done something about it, not take up this issue? Take a listen into the kind of responses coming in from members of Parliament. मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी तब बोलने। मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी तब बोलने। हाउस एडजर्न कर दिया, अब ये सुनते कहाँ हैं? ये सुनते थोड़े ही ना। आपको लग रहा है कि सरकार इस पर डिबेट करेगी? आपका लगता नहीं। So discussion on pollution also placed in but adjourned. Pollution, no solution. That seems to be the situation. हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नियत ही नजर नहीं आती। उनकी केवल एक ही नियत है, AQI से टेम्परिंग कर लो, पानी 8 मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नियत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। एक अभी सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था PM ओमान में, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा? While there was no pollution debate in Parliament, Union Environment Minister Bhupendra Yadav did speak to Times Network at the India Economic Conclave. He blamed opposition for the ruckus in Parliament and for the debate not happening. संसद जैसे मुद्दे पे आज इस पर बहस होनी थी, शेड्यूल था, आपको बोलना था, आपका यहाँ आना भी डाउटफुल था, वो हाउस एडजर्न हो गया। इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पा रही है। ये तो कांग्रेस से पूछो। राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने भी सज्जन लोग हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं, ये अगर कुर्सी पे खड़े हो गए तो आप और मैं बात कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब हंगामा हुआ। हंगामा नहीं हुआ, कुर्सी पे खड़े हो गए। अब एक बात बताओ, मैं तो अभी एनवायरमेंटल साइंस की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कांग्रेस को सिविक सेंस भी सिखाना चाहिए। वहां पर जो लिख रहा है, जो कर्मचारी लिख रहा है टेबल पे, उसके ऊपर जाके आप खड़े हो जाओगे उसकी टेबल पे, वो तो गलत था सरासर। तो फिर कैसे डिबेट होगी बताओ? ये डिबेट करने के लक्षण है। Not only was the pollution debate lost in the ruckus, the government also appears to be in denial mode. A parliamentary reply by Union MOS for Environment, or Minister of State for Environment Kirtivardan Singh, has denied any direct correlation between AQI and the impact on the lungs of individuals. While doctors, of course, we have spoken to, take a listen to what they have to say as far as AQI and its severe health impact is concerned. Well, these are all global figures that we are quoting. You know, we're not going by any of our own experiences or anecdotes or something. These are all global figures that one is quoting. And there are studies which have been conducted, scientifically conducted. And please also remember that most of these studies which have been conducted in the Western world are dealing with an AQI of 60, 70, 100, not like 500 or 900. And then they've been able to show a relationship between worsening AQI and various diseases like heart disease, lung disease. There are studies from our own country as well. To have a causal link between two things is very difficult. So you have one disease that can be caused by multiple factors. But there is data which suggests that poor air quality is associated with increased incidence of respiratory diseases, increased incidence of hospital admissions. So there are studies, I think, from AIIMS, it was somewhere in 2002 or 3, and one study was published in 2019 in children. The data on modeling, specifically for the statistical analysis models, have suggested that poor air quality exposure for a long term leads to probably reduced lifespan
as well as increased risk of many diseases and including cancers. The denial was met with a sharp response from opposition leaders who accused the government of running away from a crisis. These are delusional people if they think that that is not the reason. They are running away from any kind of accountability. They have no respect for human life. At this point, even the dogs are choking. What's the point of them apologizing? We are not accepting their apology because they lie through their teeth. And these poor chaps, these so-called MOSs and all have no powers. The problem with this government is that they wanted to whitewash the main important issue of air pollution, which is causing everybody damage. Whether the ministry is illiterate or the government is hiding some fact is the main issue. This government lives in fake numbers, fudged numbers, hiding the truth. Only propaganda is their issue. And amidst this entire controversy, Union Minister of State Kirtivardan Singh has denied ever making such a claim about AQI not being linked to lung disease. Take a look at his response. I've never said that AQI has no relation with the lung diseases. I've only said that there was a question, unsought question, that whether the WHO norms apply to us or not. So we have our own norms for air quality indicators, and the WHO norms do not apply in India. You've seen what's happening in Parliament, but when you talk about the Delhi government, the local government that is actually supposed to find the solutions, they seem to have put the onus completely on the people. Delhi Chief Minister Rekha Gupta says that if the people of Delhi want clean air, then they will have to ditch their vehicles and opt for public transport. Listen in. तो मैं ये कहती हूँ कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। हम अपनी सुविधाओं के लिए इस पूरे शहर को दिक्कत में डालते हैं और फिर खुद ही परेशान करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम होगा। जब हम सब लोग ये तय करेंगे कि मैं अपने अकेले के लिए गाड़ी निकाल करके नहीं चलूंगा, मैं यहां पे कारपूल में चलूंगा, मैं मेट्रो से जाऊंगा, मैं बस से जाऊंगा। All right, let me quickly introduce our panelists who are joining us on ground. Over here with us is Shubhendu Shekhar Awasthi. He's a spokesperson of Delhi BJP. Also with us is Sajeev Kaushik, political analyst. We have with us Dr. Ankit Bhatia, senior consultant of the Yashoda Institute of Respiratory Medicine and Interventional Pulmonology. सबसे पहले सवाल is for you, Mr. Shubhendu Shekhar Awasthi. How is it possible? दिल्ली में AQI 500, 600, कुछ लोग कह रहे हैं 900 भी है, अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं. At a time like this, how is it possible that you have a Union Environment Minister, Mr. Kirtivardan Singh, who is saying कि AQI और लंग डिजीज का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, हर्षवर्धन जी ने क्या कहा है, इसका कोई भी अभी हमारे कीर्तिवर्धन जी ने जो कहा है, उसका कोई भी अभी मेरे पास क्या उन्होंने कहा और उन्होंने बाद में इसको डिनाई भी किया। ले लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। यहाँ साफ लिखा हुआ है, एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ ट्रिगरिंग रीजंस। मैं पढ़ लेता हूँ और दर्शकों को भी, ताकि उनको पता चले। दिस इज अ डेटेड राज्यसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन 2141. It is from Dr. Lakshmikant Bajpai, to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The reply, I'm just reading out one sentence. Air pollution is one of the triggering factors for respiratory ailments and associated diseases. There is no conclusive data which establishes direct correlation between higher AQI levels and lung diseases. कैसे कोई कह सकता है आज के समय में? भाई, डेटा की बात करिए, मैं सीधे आपके टॉपिक पे आता हूँ। उन्होंने क्या कहा है वो तो आपको पता लगेगा और हम भी इसको रीचेक करेंगे। परंतु जो आपने कहा 600, 700, 800 ऐसा फिगर बोल दिया ऐसे ही, पर आप बता दीजिए लास्ट ईयर क्या ये था नहीं AQI? उससे पहले नहीं था या पिछले 2002, 2009, 2013 और लगातार 2008 के साथ कर रहे हैं हम लगातार 7 साल से है। इस बार जो AQI है, लोगों को वादा दिया था कि इस साल हवा साफ होगी, ये वादा आपने किया था दिल्ली वालों को। माधव जी, हमने वादा किया था और हम उस वादे पर हैं। और हमने एक बात और कही आपको कि आप पूरा डाटा 2016 के बाद का तो डाटा मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं यहाँ बता सकता हूँ। आज भी एवरेज भी देख लीजिए, हॉट स्पॉट भी देख लीजिए, इस समय का जो डेटा है वो लगभग 10%, 15% और 20% पिछले सालों की कंपैरिजन में कम है। दूसरी चीज, वो कहते हैं कम इसलिए है कि आप पानी डाल रहे हो जहां जहां पे मॉनिटरिंग है। पानी तो आप डाल रहे हैं। साहब सुनो तो मेरी बात, पानी तो आप डाल रहे हैं। लगभग 20 एजेंसीज ऐसी हैं जो अपने मीटर से चेक करती हैं पूरे दिल्ली में और उसको वो डाटा पब्लिक करती है दुनिया भर के सोशल मीडिया के माध्यम से। वो भी झूठ बोले। यहां पर एक ऐसा
चालू किया गया है कि पता नहीं क्या हो तो गया। आप क्या कह रहे हैं, दिल्ली में AQI कम हुआ है? दिल्ली में पोल्यूशन नहीं रहा की कंपनी से क्या? ये आप सामने देखिए पोल्यूशन, ये एक्सेप्टेबल है? नहीं था क्या ऐसा? बिल्कुल था, लेकिन आप लोग ने क्या किया है? वही कह रहा हूँ, क्या AQI ऐसी चीज पिछले 7 महीने में या 6 महीने में हो सकती है? 3 जून Okay. 2025 में। Let me get this response. This is the legacy of आम आदमी पार्टी. जवाब दीजिए इनका। आपके ऑपोजिशन पार्टीज ने काम नहीं किया दिल्ली में और ये उसका परिणाम है। हम काम कर रहे हैं, उसका असर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जवाब दीजिए। माधव, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में है हम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे संसद है, 2 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है और 5 किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पर्यावरण मंत्री, तमाम मंत्री रहते हैं। पता नहीं इनको क्या दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है इनको। आज एक व्यक्ति जो सांस ले रहा है एक दिन में 25 सिगरेट पीने के बराबर वो सांस इनहेल कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चे बीमार हो रहे हैं, परेशान है। 80% दिल्ली की जनता से पूछेंगे, वो बताएंगे कि मेरे परिजन बीमार हैं और 20% से ज्यादा पलायन कर गए हैं। देश के प्रधानमंत्री भी पिछले साल नहीं। अरे सुन तो लीजिए साहब, पिछले बार इलेक्शन में, दिल्ली के इलेक्शन में यही मुद्दा बना था, यमुना पोल्यूशन और एयर प्यूरिफायर। ये जितने सदन में बैठे हुए लोग हैं, इनके गाड़ियों में से एयर प्यूरिफायर खींच लीजिए, संसद में से खींच लीजिए, निकाल लीजिए, देश के सुप्रीम कोर्ट में से निकाल के खींच लीजिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है। ये अमीर लोग बैठे हुए गरीबों के बारे में गरीबी की बात नहीं होती है। आप जिस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, जिस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, उसने नहीं किया काम। आपको 11 साल आती है ये बात कहते हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे महिला को मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, जिसको AQI के बारे में पता नहीं है, जिसको थर्मामीटर के बारे में पता नहीं है कि कैसे चेक होता है। हमारे मंत्री रोजाना जाते हैं और दिल्ली के पूरा पहाड़ पर जाकर राजनीतिक प्रवक्ता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ये बताया पहले। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो कि राजनीतिक प्रवक्ता हो, ये आप जवाब दीजिए। मैं लास्ट ईयर डिबेट का विषय ये नहीं है, डिबेट का विषय ये नहीं है, डिबेट का ये विषय नहीं है। शुभेंदु जी, सवाल यह है कि आपकी सरकार ने आखिर क्या किया है, और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि आप बंद ऑफिस के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा के काम कर रहे हैं, आप दिल्ली की रियलिटी नहीं समझ पा रहे हैं और उसके लिए इस वजह से काम नहीं कर पा रहे। जवाब दीजिए। जैसे इनकी सरकार चलती थी, 40,000 रुपए का पराली खरीद के 16 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में लगाती थी और 22 करोड़ रुपए खर्च करती थी एडवर्टाइजमेंट में। बीच में मत बोलना कौशिक की। वैसे ही कहते हैं हमको काम करना चाहिए। हमने 3 जून 2025 को एक मीटिंग बुलाई और उसके ऊपर एक बड़ी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कि इसको रुको तो भी, सुन लो तो भैया, सुनो तो भैया, पहले सुन तो लो। 2026 से लेके 28 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, इसके पूरी प्लानिंग करी गई। और इस समय पर जो टेम्परेरी चीजें लेनी चाहिए, उसके लिए 1811 टीमें डेवलप की गई है। कोई कहीं पर इंडस्ट्री में चेक कर रहा है, कोई कहीं पर डस्ट चेक कर रहा है। शुभेंदु जी, थियरी का समय निकल चुका है, थियरी का समय निकल चुका है। आप आम आदमी पार्टी को जितना कोसना चाहते हैं कोसिए, और मैं भी कहता हूं इन्होंने वहां पे जो फार्म फाइल्स पे काम करना चाहिए था पंजाब में, शायद पूरी तरह काम नहीं किया। लेकिन दायित्व आपका बनता है कि आप दिल्ली के नागरिकों को साफ हवा दे और ना कि उनको कहे कि आप गाड़ी इस्तेमाल बंद कर दीजिए, आप ऐसे करिए। अरे आप हवा को साफ करेंगे। आप मुझे ये बताइए, आज की डेट में दिल्ली में डीजल की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन क्यों हो रही है? क्यों अपने प्राइवेट कार्स की डीजल रजिस्ट्रेशन बैन क्यों नहीं कराया? डीजल व्हीकल्स क्यों चल रहे हैं दिल्ली के सड़कों पे? जनरेटर्स क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग फ्यूल है। ये देखिए, आप सरकार के प्रवक्ता होते हुए आपको ये नहीं पता है कि सबसे पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा होता है? डीजल गाड़ियों को अगर बंद करने के गाड़ियां बंद करें, उससे ज्यादा डीजल व्हीकल्स सरकार ने कहा दिल्ली में। माधव जी, जब कल से सरकार ने कहा कि हम फ्यूल नहीं देंगे जब तक PUC नहीं होगी, तब लाइन लगा के लोग खरीद ले रहे हैं। क्या जनता का भी समझ में नहीं आता कि हमको भी अपनी गाड़ी चाहे पेट्रोल की हो चाहे डीजल की हो, उसको पोल्यूशन का फॉर्म। Let me bring in the doctor, and in fact I want to bring in Dr. Ankit Bhatia on 2 aspects. Dr. Ankit Bhatia, it's complete sense of disbelief, and you can look at this response where it says that there is no conclusive data which establishes a direct correlation between higher AQI levels and lung diseases. The point is there is so much that can be done, and there is so little being done. It is not just Delhi. It is in the entire NCR also. Very little action, a lot of high promises, and there is absolutely no sense of pride in ensuring that this repeatedly embarrassing situation, which is a health hazard, a health emergency, is not tackled. Just to give you an idea, respiratory infections. Every year
India's story. We are getting patients who are having sore throats, we are having cough. Our patients of asthma, COPD, all the lung cancer patients are coming with their repeated attacks and exacerbations. If you take the data of the emergencies of the hospitals in Delhi, you might be seeing that there is an increase in number of respiratory infections post-Diwali. It is a never-ending phenomena. We also have been receiving patients in the outpatient departments which are having cough. This cough is not going away for a month or two. We have been giving them steroids, we are giving them nebulizers, but the cough has been becoming very much resistant. Many of our patients, the COPD patients, the respiratory patients are coming again and again in the emergency, getting admitted in the ICU. This is post-Diwali. Once the Holi comes, many of these patients are slightly better. After Diwali, they are probably in a hell. If you talk about the data, Lancet, the great journal that we follow, Lancet had recently published in around 2023-24 a data which said that 1.7 million deaths in India were attributable to air pollution only. 1.7 million, that's a huge number. 17 lakhs. 17 lakhs, that is a huge number. Annually, the 17 lakh people die. That's an important data point, and perhaps those who've written this line, that there is no conclusive data, should read that Lancet survey. There is a Lancet recently, there is a data, Lancet has subjectively said that there has been more than 1.7 million deaths categorically in the report in India directly due to pollution, and this is a short-term data. I'm not talking about long-term data. The PM 2.5 levels that we are having might have a long-term effect, because the PM 2.5 directly enters the deepest part of your lungs, can directly enter your bloodstreams, can cause growth retardation in children, can cause future lung cancer, can cause miscarriages in pregnant women, can cause future COPD problems. So our future of our country is not good because of the particular 2.5 levels. So this is all known. Ladies and gentlemen, the shocking part is that all this is known, and yet we will do nothing at the highest levels of governance to the lowest levels of governments. And I will also ask this question, after the opposition. Sanjeev ji, आपका ये भी दायित्व बनता है. सरकार से तो हम सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का भी कुछ दायित्व बनता है. जब पार्लियामेंट में इस मामले पे डिबेट हो सकती थी, भूपेंद्र यादव कह रहे कि ऑपोजिशन के रकस की वजह से डिबेट नहीं हुई. हमें डिबेट, एक तरफ राहुल गांधी डिबेट मांग रहे हैं, और जब डिबेट का वक्त आता था, अब रकस कर देते हैं, शिवराज सिंह चौहान के मुंह पे पेपर्स फेंक देते हैं. ये कैसा रवैया है? दिल्ली की जनता को डिबेट चाहिए या उसको सॉल्यूशन चाहिए? डबल इंजन की सरकार, सोल्यूशन मैंने कहा डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती हो कि डबल इंजन की सरकार आएगी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, द्रुत गति से काम होगा. आपने क्या किया? पर आप ये पता है पहले जवाब दिए, पार्लियामेंट में रकस क्यों किया? मैं इनसे पूछ रहा हूँ वो सवाल. ट्रिपल इंजन का आपका सवाल लेजिटिमेट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों का रवैया ऐसा क्यों रहा? आप एक तरफ राहुल गांधी डिमांड करते हैं कि लेट्स हैव एन इम्पार्शियल नॉन पार्टिसान डिबेट इन पार्लियामेंट, और जब डिबेट का वक्त आता है तो इस तरह बिहेव करते हैं आप लोग. आपकी भी गलती है इसमें. ये कानून जब भी लाते हैं, सदन में इस तरह का रवैया खड़ा करते हैं कि निश्चित तौर पर उस समय विपक्षी पार्टियां निकल जाएगी, वॉकआउट कर जाएगी. सदन को चलाना इनकी जिम्मेदारी है ना, मेरी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है. सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और भरोसे में लेकर के कैसे बात कही जाए, सुनी जाए, कानून बनाना है, नया संशोधन करना है, उस सब चीज में सदन को ये काम करना होता है. जवाब दीजिए. सदन का चलाने का जो जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने पूछा, दैट इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन. डबल इंजन और ट्रिपल इंजन, एमसीडी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों बीजेपी की सरकारें हैं, तब भी इतना बुरा हाल है. मैं खाली एक ही चीज कहूंगा. पहला पॉइंट उनका कि जितने भी बार पार्लियामेंट चले, जितने भी टॉपिक पे इन्होंने झगड़ा किया होगा, चाहे पेगासस हो, मणिपुर हो, ये राफेल हो, खूब झगड़ा किया, उन्होंने चलने नहीं दिया, और जिस दिन डिस्कशन पे जवाब दिया गया उस दिन भाग गए ये लोग. आज भी यही किया उन्होंने. दूसरा पॉइंट आता हूं, आपने जो कहा ट्रिपल इंजन की सरकार. देखिए 11 साल उनकी सरकार, और उसके पहले उनकी शीला जी की सरकार, कांग्रेस की. हम 26-27 साल के बाद यहाँ आए हैं. हमको ये जो पोल्यूशन का मैटर है, स्टेट का मैटर है. ये मैं काम करना आपने दिवाली के बाद शुरू किया. नहीं, 6 महीने से तो आपकी सरकार है, 5 महीने 6 महीने से आपकी सरकार है. पहले दिन से इस पे काम करना चाहिए था, वॉर फुटिंग पे, वो नहीं किया गया. कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी. मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ जिसमें हाई लेवल की कमिटी. दिख रहा है उसका असर. कुछ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कुछ शॉर्ट टर्म मैसेज किए गए हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर किया जा रहा है. आज ये कह रहे हैं कि मैकेनिकल स्वीपिंग नहीं हो रही, वैक्यूम क्लीनिंग होनी चाहिए, उनको मालूम ही नहीं है. जो मैकेनिकल स्वीपिंग है, लगभग 200 मशीनें एक्स्ट्रा ऐड की गई. 1822 टीमें लगाई गई हैं इस बात के लिए. वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं, यहाँ की कनॉट प्लेस की या कहीं होटल की,
उसके ऊपर स्प्रिंकलर लगाने के लिए कहा गया है। हमने रोड के ऊपर स्प्रिंकलर लगाए हैं। ये बड़ा शॉर्ट टर्म मेजर है, क्योंकि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए यही कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म मेजर भी हम ले रहे हैं कि जिससे कि पोल्यूशन ना हो। लॉन्ग टर्म मेजर हम इस बात का भी ले रहे हैं कि ये जो जिस झंझट से हो रहा है, हमने क्लाउड सीडिंग तो पूरा फेलियर था। क्लाउड सीडिंग को ट्रायल किया हमने, मैं कहता हूँ फेल हुआ, बिल्कुल, बट फेलियर था। पब्लिक के एक्सचेंज के पैसे खर्च किए गए। लेट मी आस्क डॉक्टर, you know, as a citizen, I mean, you're not an environmental expert, I know, but what are the few things that you can see? You must have traveled in Delhi NCR, where, you know, there is no public transportation, you know, there is construction continuing. What are the few things that governments, at whichever level, at MCD, state, at central level, can do immediately to reduce the levels of pollution that we are seeing around us? I think this is not a single effort. This has to be a collective effort of everyone. All the citizens, the politicians, everyone has to be involved in this. First of all, we have to identify that there is a problem. So once we know there is a problem, we can go and find a solution for that. Recently, China has given an advisory to us that what they did to decrease their pollution. China had a similar kind of a pollution like 10-15 years back. In Beijing, In Beijing. But now Beijing is pretty much clear. They are green, they are blue skies, and everyone is green. So we have to take examples of other countries and see what we can do to decrease the pollution aspects. But there has to be a collective effort. There should not be a knee-jerk reaction, so that after Diwali the pollution rises, and after Holi you go and sit down and don't do anything and don't even forget that there is a problem. So this has to be a sustained effort for the next 5 years, 7 years. We have to take an aim that we have to decrease the PM 2.5 levels. Absolutely. Long-term measures, medium-term, short-term, all have to be taken. We cannot do a short-term measure just by sprinkling for 2 months, 3 months. There has to be a sustained effort. We have to take an aim of next 5 years that we have to bring the average AQI levels to less than 100. And I want to ask this question. I want to ask this question of Subhendu. I'm coming to you also, Sanjeev Kaushik. Subhendu जी, आज हम दिल्ली NCR में हैं, और दिल्ली की पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, नोएडा हुआ, सोने पूरा NCR, और NCR के रीजन में सारे स्टेट्स, चाहे हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान, अगेन रूल्ड बाय बीजेपी. Again, where is the concerted effort of coordination? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रेखा गुप्ता जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर पब्लिक जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, एनसीआर में कहाँ है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट? बस नेटवर्क्स नहीं है, लोकल लेवल की ट्रांसपोर्टेशन पूरे एनसीआर में नहीं है, कहीं सरकारों में एक कंसर्टेड एफर्ट नहीं लिया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन भी धड़ल्ले से चल रही है हर जगह, और हम कैसे टैकल करेंगे? आप जो लॉन्ग टर्म के लिए सही कह रहे हैं, ओवरनाइट शायद नहीं कर सकते, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी तो नहीं हो रही। लॉन्ग टर्म की क्या प्लानिंग है मैं आपको बताता हूँ। लगभग अगले साल तक 3,500 बसेस और ऐड की जा रही है, वो पूरे एनसीआर में चलेंगी। खाली यही नहीं कि दिल्ली में चलेंगी, यहाँ से गुड़गांव, यहाँ से नोएडा, यहाँ से सोनीपत, यहाँ से पानीपत, हरियाणा के जो पूरा बॉर्डर एरियाज है। साथ में आप सोचो कि पिछली सरकार ने मेट्रो की स्पीड इतनी धीमे कर दी कि जो 100 होनी चाहिए तो उसको रिड्यूस करके 10 और 15 पे लेके आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा है उनको कि आपको मेट्रो को देने के लिए पैसा नहीं है, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा है, तो उन्होंने कुछ पैसा दिया शायद। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम मेट्रो को बहुत तेजी करेंगे, हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन है, चाहे इलेक्ट्रिक बसें हो, चाहे मेट्रो हो, या जो हम और स्पीड ट्रेन चला रहे हैं इन एनसीआर में जाने के लिए। संजीव, क्विक रिस्पांस। बंदर के चतुरता को देख करके लोगों ने उसको राजा बना दिया। एक बार शेर आया और एक बकरी के बच्चे को उठा के ले गया, दौड़ के गए सब बचाइए बचाइए बचाइए। बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, बोला बचाइए तो सही मार के खा जाएगा। उसने कहा कि हम हमारे उछल कूद पे कोई कमी हो तो हमें बताना, हम प्रयास कर रहे हैं, बचाएंगे या नहीं बचाएंगे तुम जानो अपना। तो 11 साल तक जब आप सरकार में थी तब कौन जो कूद रहा था इधर? तब कौन था? केजरीवाल जी। ये काम नहीं करने दे रहे थे। नहीं, आपने क्या किया? सरकार ने भी तो नहीं किया। आई एम नॉट जस्टिफाइंग, और मैं 1 मिनट के लिए इनको जस्टिफाई नहीं कर रहे। सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे और इनसे अगले 5 साल तक पूछे जाएंगे। The question is this, that we cannot afford for this to be a partisan issue anymore. As a society, we have to debate it, find solutions. Our parliament has to find answers and debate this issue. Our government has to stop being in denial mode. And all those who even nurse such thoughts have to be shunned publicly. We need action, and we needed action yesterday. At least let's act now. Leaving it there. Thanks so much for joining us, gentlemen. See you.